Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in class 12th business studies, today we will be starting chapter 4, that is planning. And in today's lecture we will be studying its meaning and characteristics. अब प्लानिंग का मीनिंग तो आप लोग सब समझते ही हैं. प्लानिंग यानी कि हम क्या करना चाहते हैं और उस काम को किस तरह से किया जाएगा. जब हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्लानिंग. But before starting today's video, let us take a overview of this chapter. In the board examination, the chapter of planning is having an approx weightage of 6 marks. In this chapter, we will be studying total 6 topics. That is, first of all, meaning, then features and characteristics. तो ये दोनों टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे. After that, importance of planning, limitations of planning, steps in the planning process. That is, planning process. And the types of plans. These are the topics that we have to study in this chapter. In coming 6 videos, consecutive 6 videos, we will be studying this chapter in this sequence. So if you remember, there are 5 functions of management. Management is also a process having the 5 functions to be performed in a sequential order, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. And the first function of management, that is planning, is to be taught today. What does planning mean? Planning means to foresee about the future. Planning means making plans, making assumptions, making some certain arrangements for future, setting objectives and goals. एक सिंपल सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग मीन्स planning bridges the gap between where we are today and where we want to go. अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो पर्सन जाना कहाँ पे चाहता है. ये पर्सन जो यहाँ पे खड़ा है, इसे जाना है यहाँ पे. ठीक है. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप. अब ये यहाँ पे जो गैप है, ये जो यहाँ पे गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए इसने अपने हाथ में प्लान्स ले रखे हैं. So planning bridges the gap between where we are today and where we want to reach. Let us understand its meaning. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया. प्लानिंग में हम करते क्या हैं. प्लानिंग में सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना है, और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि उस काम को हम किस तरह से करें, कौन सा मेथड यूज़ करें. ये जो डिसीजन होता है यही है प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय होम इट विल बी डन. क्या करना है, कैसे करना है, और कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का है जो इस वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा. जब हम इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. In other words, we can say planning refers to the process of setting objectives for a given time period, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इसमें 3 पॉइंट्स मेनली डिस्कस हुए हैं. सबसे पहला क्या है यहाँ पे, दैट इज सेटिंग objectives is the first one. This is the first point that you have to understand in this definition. Planning means setting objectives, कि हम क्या करना चाहते हैं, what to do. After that, formulating various courses of action. अब ये काम जो हम करना चाहते हैं, ये जो हमने डिसाइड कर लिया, इसके लिए सेकंड पॉइंट आ जाता है. ये जो काम हम करना चाहते हैं इसे हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास में वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, हमारे पास में वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. ओके, सो उनको हम चूज़ करें. एंड आफ्टर दैट, selecting the best possible alternative. This is the third point that you have to take in this definition. So planning, what does planning mean? Planning means setting objectives, formulating various courses of action and selecting the best alternative. That is meant by planning. और ये जो भी स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अपनी कॉपी में आपको नोट डाउन करना है. दीज विल रियली हेल्प यू in the form of notes in your examinations. Let us move further with the next topic, that is features of planning, or the nature of planning, or the characteristics of planning.
हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स of management or and nature of management, these two terms were taken differently. In the nature of management we took it as the management as a science, art and profession, but in all the rest of the chapters, the features of management, features of planning, nature of planning and characteristics of planning, all are having the same meaning, same points have to be presented. And today we will be studying in all total 7 characteristics of planning. So the first one is planning focuses on achieving objectives. हम जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं उन्हीं के लिए प्लान्स बनाते हैं. अगर हमारे माइंड में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा अचीव करने के लिए, कोई गोल नहीं होगा, तो हमें कोई प्लानिंग की भी ज़रूरत नहीं. फॉर एग्जांपल, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपने एक टारगेट रखा, आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% प्लस मार्क्स अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्टिव रखा. अब इसके लिए आप प्लान प्रिपेयर करेंगे कि डेली मुझे 4 to 6 आवर्स स्टडीज़ करनी है, मुझे स्कूल के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, मुझे कोचिंग जाना है. ये वेरियस आपने प्लान्स प्रिपेयर किए. तो अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं रखा होता मार्क्स अचीव करने का, तो आपको प्लान्स प्रिपेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी. सो प्लानिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. जब आप ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू अचीव प्री डिटरमिन्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग इज ऑलवेज डन फोकसिंग ऑन अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. उन्हीं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं. लेट अस मूव विद द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. Planning is a primary function of management. I think this need not to be explained further, because you all know in the process of management we have total 5 functions and planning is the first function in that out of those 5. That is, planning is the primary function. In other words, we can say planning lays down the basis फॉर रेस्ट ऑफ द अदर फंक्शंस. सबसे पहले हम प्लान सेट करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है वो हम प्लान्स बनाते हैं. और उसी के बाद में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बाकी के फंक्शंस का नंबर आएगा. अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, तो बाकी के स्टेप्स का नंबर तो आना ही नहीं है. सो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. पहला हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. जब भी हम प्लान्स बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर फोकस करते हैं. और प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है. लेट अस मूव विद द थर्ड वन. प्लानिंग इज परवेजिव. व्हाट डज परवेजिव मीन? परवेजिव मीन एनी एक्टिविटी और एनी फंक्शन दैट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड at all the levels of management. As you all know, in the management we have 3 levels: top level, middle level and lower level. Top level, middle level and lower level. So any activity which is to be performed at all the levels of management will be known as pervasive. So this planning function, where it is to be performed? Planning function is performed at top level management, at middle level management, as well as at the lower level of management. At all the levels of management, the planning function has to be performed. 3 levels we have. Now just comment and answer, what are the other names given to lower level management? We have 3 levels: top level, middle level and lower level management, and in our previous videos I've taught you the other names given to the lower level management. Just mention your answer in the comment box. So क्या लिखा है यहाँ पे? Planning is required at all levels and in all departments of the organization. It is not the exclusive function of top management or a particular department only. However, most important thing, however, the nature and extent of planning may vary from level to level, but it is to be performed at all the levels of management. So कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से फीचर्स अभी तक हमने पढ़े? प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज़ परवेजिव.
Let us move with the fourth characteristic. Planning is continuous. क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, साल के स्टार्टिंग में आप प्लान्स प्रिपेयर करें और उसके बाद में आपको उन प्लान्स को मॉडिफाई करने की, उन प्लान्स को इम्प्रूव करने की, उन प्लान्स में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े? ऑब्वियसली नॉट. Planning always based over the situations and the conditions prevailing in the business environment. And business environment is always dynamic in nature. Business environment is always uncertain in nature. So we need to change our plans. We need to modify our plans. We need to undergo with the planning function continuously every day, every hour. अब सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो किसी एक बिजनेसमैन ने प्लानिंग किया होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च फॉर इट्स नेक्स्ट कमिंग ईयर, क्योंकि जो अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल से मार्च का होता है तो उसकी प्लानिंग तो मार्च में ही करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में करेंगे. बट जैसे ही अप्रैल में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया तो उसको सारी की सारी प्लानिंग क्या करना पड़ा होगा, चेंज करना पड़ा होगा. सो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. It cannot be done only once, but it has to be done again and again continuously. So total हमारे 4 फीचर्स हमने पढ़ लिए. सबसे पहला हमारा क्या था, प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड हमारा क्या था, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन. थर्ड क्या था, प्लानिंग इज़ ऑल परवेजिव. एंड फोर्थ इज़ प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस. द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. Can you make plans for the past? Obviously not. Plans are always made for the future. कि हम फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर में हम कोई टारगेट को अटेन करना चाहते हैं, तो उसी के लिए प्लान्स बना सकते हैं. आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्या आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं? क्या आप कोई प्लान ऐसा बना सकते हैं जिससे आप अपने क्लास 11th के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें? 11th का तो जो रिजल्ट आना था आ गया, अब आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते. नो प्लान कैन बी मेड फॉर पास्ट. प्लान्स कैन बी मेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12th, जो अभी आपका एग्जाम्स होना बाकी है, उसके मार्क्स के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं. सो प्लानिंग इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. प्लानिंग कैन नॉट बी डन फॉर पास्ट. द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग में क्या होता है, हमारे पास में 2, 3, 4 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं कि पहली बात तो हमें क्या काम करना है और इस काम को हमें कौन कौन से ऑल्टरनेटिव से हम कर सकते हैं. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. एंड आउट ऑफ दोज वी चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच विल गिव्स अस द मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द लोएस्ट कॉस्ट. इन केस हमारे पास में अगर एक ही ऑल्टरनेटिव मीन्स डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, तो फिर हमें उसमें प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, फिर तो उसी को हमें अप्लाई करना है. बट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग ऑफ चॉइस ऑफ वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी. वी नीड टू मेक प्लान्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमारे पास में वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं. पहला है कि हम जूम ऐप को यूज़ करके पढ़ें. दूसरा है कि हम यूट्यूब पे वीडियोस देखें. तीसरा है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस पर पढ़ें. अब हम इन 3 ऑल्टरनेटिव में से जब किसी एक को चूज़ करते हैं तो ये क्या हुआ, हमने एक डिसीजन लिया दैट वी हैव टू टेक अ डिसीजन. आउट ऑफ दीज 3 हमें बेस्ट कौन सा लग रहा है वो हम डिसीजन लिया. सो दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. अब अगर एक ही ऑप्शन हो तो फिर उसमें प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, जो है उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट हैज़ वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. And the last characteristic of planning, that planning is a mental exercise, or we can say planning is an intellectual process. Planning cannot be done with hands. Planning is not performed physically, but planning is performed intellectually. Planning इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. अभी अभी हमने पढ़ा था प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन तो माइंड से ही लिया जाता है. जब भी कोई पर्सन प्लान्स प्रिपेयर करेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा, तो वो सब अपने माइंड से, थिंकिंग से ही डेवलप करेगा. सो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ रादर दैन द फिजिकल एक्टिविटीज़. Okay, so these were the total
7 characteristics of planning. Let us take a recap of all of these. Planning focuses on achieving objectives. पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं. प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट as it forms as a base for all the other function of management. Planning is pervasive, that is planning is required to be performed at all the levels of management. और आपको कमेंट में बताना है कि हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को और किस नाम से जानते हैं. Planning is continuous because business environment is dynamic in nature. Business environment is always changing, ever changing. That is why planning needs to be continuous as the changes takes place in business environment. Planning is futuristic. We cannot plan for past, but we can make plans only for future. Planning involves decision making. And under the planning, we identify various courses of actions, alternative courses of action, and after that we decide one best alternative course of action. And lastly, that is planning is a mental exercise, that is it is an intellectual process. आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा. टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. टिल देन स्टे ट्यून्ड and keep sharing K Commerce Academy for class 12th accountancy, business studies and economics. Thank you.